Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. So hello everyone. Welcome everyone, and first of all, thank you for joining on the Sunday afternoon. And I also welcome Madhav Agarwal, our guest of the session and speaker of the session. So just to start with, how we will plan this session. So initially, we can discuss few things about Mains 24. Those people who are appearing in Mains 24, you can please share your questions and queries. So we will first go through the Mains 24, what is required to be done, any questions and queries that you're facing any problem and content in answer writing and anything. And then we can go for the Mains 25 people or people who are the beginners, their queries. So again, I welcome Madhav Agarwal, and let me introduce him. So he has got rank 211 in the UPSC Civil Service Examination 2023 with the Commerce and Accountancy as an optional. By qualification, he is a chartered accountant, and he joined our test series in Civil Service Examination 2023. And basically, I will say it is all his own effort that he has got a rank. The contribution of Diademy has been very, very little contribution, and the all credit goes to him only. He has put all the effort. I saw he wrote all the tests, which is very, very difficult actually in the prelims to main cycle. This is very, very difficult to write all the tests timely, and he actually did a lot of preparation between the test, and he whatever the feedback was given, he was improving upon that from test to test. That is my observation as a examiner or as a teacher, that he did put up a lot of effort in whatever feedback was given or whatever strong areas were pointed out. So why I'm sharing this, because ultimately it comes down to you only, that you have to put an effort. We as an institution, we have very, very limited role in your success. The ultimate credit goes to you people only. So this is my thought. So over to Madhav. I think Madhav, we can first take up the 2024 related issues. If you want to say something, you want to share some experience, I think you can start by sharing your experience, and then as per the queries and questions, we can proceed. Thank you so much, sir. काफी अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, एंड डेफिनेटली सर लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज ने भी हेल्प किया जो प्रैक्टिस मिलती है, एंड दिस ईयर आई कैन सी दैट यू हैव इवॉल्व्ड द टेस्ट सीरीज एज वेल बाय इनकॉर्पोरेटिंग डेली आंसर राइटिंग, which is important. I'll discuss in the session. I have divided the session basically as sir asked me to do that. First we'll discuss the time management, how we should approach the next 2.5 months. इस तरीके से आपको revision plan करना चाहिए. Next I'll be discussing what points you should keep in mind for preparation of paper 1 first and then paper 2. So we'll go point by point. And at the end, I will discuss how to plan those 5 days after the GS
that you have gap from Monday to Friday. So you have to plan those 5 days, how to revise on that those 5 days. What approach did I follow on those 5 days? Basically, this will be my area. All right. If at the end we can take up some specific doubts if you have, and as sir discussed, the time of students who are giving mains 24 is much more precious as of now. So if you are a mains 2024 candidate specifically, just write mains 2024 before your doubt so that we'll address that. And the other ones we can address at the end of the session so that they can leave. Right. So sir has briefly introduced, I have secured rank 211. Choosing this optional was very natural to me. I am a chartered accountant, and basically seeing this commerce paper in UPSC cycle was a little bit comforting for me so that I can get a break from the mundane GS reading general studies paper every day. So when I used to come to commerce, I used to feel relaxed. This was a benefit. Last year, I have scored 150 marks in paper 1, 127 in paper 2. And in my past experiences also, I have scored around 260s. So this has been my academic journey per se. Now, as we see that we have exactly 74 to 75 days left for mains 2024. So what you can do is, based on your level of comfort in the optional, you should give 3 to 4 hours every day for an optional. If your level of comfort is lesser in terms of your preparation, so say this is your first mains and you have not written any proper paper, you should increase this time. But if you are a little bit comfortable, you have done answer writing before, I think 3 to 4 hours preparation is enough. And you should continue this till the end. And so that adequate focus you can also give to GS. So first revision, you should try to finish, because already 15 days have happened since the 15 to 20 days have happened since the prelims. So you must have revised some things. So you should finish your first revision in the next 25 days, I would say. The lesser, the better, of course. And you can plan 2 more revisions in the remaining days. So first revision you are doing in say 35 days, including these 25 days. And your next revision, you reduce it by some days. So 20 days, 25 days, you'll do the next revision. And then last revision in 15 days. So what will happen is you'll go through the same notes, etc. And this will help you in proper memorization of your content, as well as ensure that you're replicating what you're reading in the answers. So one more important thing is to make short notes. So short notes you should make at the end. Last revision में आप short notes बनाइए, key points को उसको लिखिए. For example, अगर मैं HRM के कोई chapter का short note बनाऊंगा, से training and development का, तो उसमें जो जो key points है मैं उसको लिखूंगा उस short note में. Short notes in the sense एक अपने crisp notes आप बना रहे हैं. So definition approach करूंगा, training versus development की बात करूंगा. Then what is the process? Training and development की process क्या होती है, क्या challenges आते हैं, क्या methods हैं, कुछ PYQs हैं important जो UPSC ने पहले पूछे हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं, एग्जांपल्स हो गए, डेवलपमेंट साइकिल पे आ गए. तो इस तरीके से आप की टर्म्स लिखिए, लाइन में लिखते जाइए, कॉमा कॉमा करते हुए. आपने सर के भी OBOT के क्रिस्प नोट्स हैं, उसमें भी इस तरीके से ही सर ने लिखा है, लिमिटेशंस फिर कॉमा 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 करके. अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है तो, या फिर आपने सर के नोट से पढ़ा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे लास्ट रिविजन में आप आएंगे तो आप ये इंश्योर करिए कि आप वो 5 डेज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको आप अभी से मार्क करके छोड़िए. क्योंकि क्या होगा, जैसे 20 सितंबर से मेंस होंगे इस बार, आप अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज पहले सिर्फ GS मोड में आ जाएंगे. यू लीव योर ऑप्शन एंड देन यू विल पिक इट अप आफ्टर 5 डेज. सो विद इन अ गैप ऑफ 15 डेज आप काफी सारी चीजें आप भूल जाओगे कि यार अच्छा मुझे OBOT में क्या एग्जैक्टली पढ़ना था, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे अभी ओवर द 2.5 months. सो आप नोट करिए, OB में आई विल रीड दिस बुक, ये पेजेस, अपने शॉर्ट नोट्स का ये पोर्शन. मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट्स वगैरह भी करता था, तो मेरे को ये भी लिखना पड़ता था कि यार ब्लू हाईलाइट पढ़ना है, कि हाईलाइट ही इतने सारे हो जाते थे. तो वहां पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो टाइम वेस्ट करोगे विच इज वेरी क्रूशियल. तो आप अभी से प्रॉपर नोट बनाइए, यार FM में दिस चैप्टर में मैं ये क्वेश्चन देखूंगा, या फिर सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल का ये अपने इश्यूज देखना है. उस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तभी वो रिवीजन फास्ट हो पाएगा. और क्योंकि ये ग्रेडेड एक प्रोसेस है आपके रिवीजन की, पहले आप 20-25 डेज में कर रहे हो, फिर 15 डेज, फिर 10 डेज में, तो आप कंटेंट भी रिड्यूस करोगे धीरे धीरे. जैसे जैसे आपका कंटेंट रिड्यूस होगा, आपको थोड़ा इंटेलेक्ट पे अपने ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि
जो आपने पहले, अब आप वापस नहीं पढ़ रहे हो, आपको याद रहेगा। तो उसमें आप करिए। ये मेरे बेसिक टिप्स थे टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी। Sorry इसमें to interrupt. यस Sorry to यस interrupt. But यस this is, I really want to emphasize this point जो आपने अभी raise किया. Uh, like if we can say this is a very good tip for the syllabus management, because UPSC is not only about preparation, not only about intellectual effort, but it is also about the basic management of the syllabus, the basic management of the topic, so that we are comfortable in the last few days. So this is a very, very good tip that we have to be visionary, and we have to see that in last 5 days how we will manage that. We have to keep that thing in mind from today itself. And this is applicable for everyone, including 2025 people, because in 2025, those preparing for 2025 also, they will be putting their 4 5 months now. So that time they will not be able to get back next year. So they have to plan that how will they revise the same content in the next attempt in 2025 within 2 months after the prelims. So this is a very, very, very important aspect. Yeah, please continue. Yes, so this were the basic tips I had to give for time management, planning your optional, etc. Of course, we'll be doing test series और आंसर राइटिंग आप डेली बेसिस पे कर ही रहे होंगे। अब मैं पेपर 1 के आपको स्पेसिफिक टिप्स देना चाहूंगा। सो दीज टिप्स विल आर स्पेसिफिकली एम्ड एट एडिंग योर प्रिपरेशन बेटर। आप कैसे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अभी मैं आपको सोर्स बताऊं कि आप इस सोर्स से पढ़ें या वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 1 में एक फैक्टर आता है, एक्यूरेसी चाहिए आपको, और एक टाइम फैक्टर को आपको ध्यान रखना है। तो एक्यूरेसी एंड टाइम दोनों के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को चूज करना है वहाँ पे एग्जाम में। तो वहां पे क्या होगा, टाइम इज ऑफ द एसेंस, क्वेश्चंस विल बी सिंपल। फॉर एग्जांपल आप फाइनल अकाउंट्स यू विल आल्सो हैव डन इन क्लास 11th एंड 12th, सेम लेवल का सम आएगा अभी, ऑलमोस्ट सेम लेवल का अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे। बट बिकॉज ऑफ द न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एक्सेट्रा, आप उसको नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट इन 30 minutes ऑल्सो विद प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल्स एक्सेट्रा, ऑल्सो इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन दैट। सो आपको सिंप्लिसिटी तो देखना ही है, बट उसका टाइम फैक्टर भी देखना है कि वो इज इट पॉसिबल कि मैं वो क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम कर लूँ। 20 minutes, 20 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो और क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए, यू रीड द क्वेश्चन टिल द एंड, बिकॉज इनिशियली यू फील दैट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कुड बी वेरी वेग। For example, they are asking you to draw balance sheet before and after amalgamation. So this will increase your time. They are asking you to give journal entries for say 4 years. So all these activities, even if the question is easy, it will cost you time, which is a very crucial thing in paper 1. So question choose करते वक्त आप accuracy और अपने time factor को ध्यान रखिए। सेकेंड टिप मैं जो देना चाहूंगा आपको इज विद रिस्पेक्ट टू, आप एक लर्निंग शीट और एक फॉर्मूला शीट अपनी बनाते जाइए। बिकॉज अभी आप जैसे पेपर 1 उठाएंगे, यू विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू विल बी रीडिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो देयर यू विल बी मेकिंग वेरी सिली मिस्टेक्स इन योर टेस्ट, इन योर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। सो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप एक लर्निंग की शीट बनाएंगे, उसमें आप उस मिस्टेक को और नोट डाउन कीजिए। तो उसको नोट डाउन करने के लिए जैसे आप सिली मिस्टेक करिए एफएम में कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप आफ्टर टैक्स नहीं ले रहे हो, बिफोर टैक्स ले रहे हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर कुछ क्वेश्चन से आपको लर्निंग मिली कि डेटर्स को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है एफएम में, एफए में। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपकी स्पेसिफिक लर्निंग्स हो सकती हैं। तो उस तरीके से आप अगर आप एक लर्निंग शीट बनाएंगे, तो इससे ये क्या फायदा आपको होगा कि जो आपकी 3 महीने की मेहनत है, आप एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा, ये 3 महीने की मेहनत एंड तक आते आते डाइल्यूट हो जाएगी। तो आपकी पूरी प्रैक्टिस जो है वो फेड हो जाएगी। तो बेटर है कि आप एक लर्निंग शीट बनाएं जहाँ पे भी आपकी सिली से सिली मिस्टेक आप उसमें लिखिए। जैसे अगर मैंने 60% का 1/3 किया, दैट कम्स टू 20। मैंने एग्जाम में सपोज कर दिया 30, तो 60 + 30 में 90 लिख दिया, बट 60 + 20 80 होना चाहिए था। 60 को 1/3 से बढ़ाया तो ये मिस्टेक भी मैं उसमें लिख लूंगा कि यार ये सिली मिस्टेक नहीं करना है, कंप्यूटेशनल इश्यूज नहीं करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन पढ़ रहे हैं, अगर उसका क्वेश्चन आया तो ईयर का ध्यान देना है, 2015-16 लिखा है कि 16-15 लिखा है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जो अगर आप अभी से नोट डाउन करते हो जाएंगे और एग्जाम के एक दिन पहले वापस पढ़ेंगे और अपने रिविजन्स में भी पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, तो आपको बेनिफिट होगा और आपके एक्यूरेसी बढ़ेगी।
Next important thing is in paper one is that you should not ignore theory questions, even if you are attempting more practical questions, because paper one में usually students का एक tilt आता है कि they try to attempt more numericals, which is okay if you are have enough practice etc. But theory questions की अगर आप देखें तो short notes आएंगे 100 marks के, 50 marks in part A, 50 marks in part B, और 3 other numerical questions will be attempting suppose. So उसमें भी एक पार्ट थ्योरी होगा 10 मार्क्स का, तो मिनिमम 130 मार्क्स का थ्योरी तो आपको अटेम्प्ट करना ही इन द पेपर वन आउट ऑफ 250 मार्क्स. सो थ्योरी पे भी आप एडिक्वेट फोकस दीजिए. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं या फिर सिलेबस में दे रखे हैं, उन पे आप शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए. Second, of course, the important aspect is to focus on the PYQs. PYQs because there are a lot of themes which get repeated in कॉमर्स पेपर. अपन यूपीएससी जनरल में भी देखते हैं पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस, और कॉमर्स में तो आई थिंक 70 to 80% पेपर आपको सिमिलर लाइंस पे दिख सकता है. तो अगर आप पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हैं जो टेस्ट सीरीज में भी अभी सर करवा रहे हैं, तो आपकी एक बेटर प्रैक्टिस होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी. एक होता है कि आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, आपको सब कुछ आ गया, बट अगर आप उसको 2 पेजेस पर रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आंसर राइटिंग, तो उसका सेंस बहुत कम हो जाएगा. एक चीज और इसमें रहती है कि समटाइम्स द टॉपिक विच इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वो एकदम से पूछ लेती है यूपीएससी. तो आप थोड़ा सा ट्रेंड अगर देखेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उस पर सडनली क्वेश्चन आ गया था, आई थिंक लास्ट ईयर ही आया था. तो उस तरीके से आप उन टॉपिक्स को इग्नोर मत करिए जो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं, उस पर भी कभी यूपीएससी पूछ लेती है. और थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट ईयर्स का भी पैटर्न चलता है यूपीएससी के कॉमर्स पेपर में. सो 2021 में जो थीम्स आए हैं वो चांसेस है 2023 में आएंगे. तो एक ऑल्टरनेटिव ईयर में चलता है कि वो थीम्स रिपीट होते हैं. जैसे इस साल डिविडेंड पूछा तो नेक्स्ट ईयर में भी दे नॉट आस्क डिविडेंड, दे लास्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो उस टाइप के आप, इससे ये नहीं है कि अपने को सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ना है, बट जब अपन रिविजन प्लान कर रहे हैं तो अपन स्मार्ट हो सकते हैं, इन पे ज्यादा रिवाइज कर लो, एग्जाम डे पे इन पे ज्यादा टाइम दे दो. तो उससे ये होगा कि आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, वहां पे आपके 1-2 मिनट बचेंगे जो आपको एड करेंगे. इनफैक्ट ऐसे टॉपिक के लिए लाइक वी कैन प्रिपेयर सम स्पेशल एग्जांपल्स, Yes. वी कैन राइट मोर आंसर्स. सो हाँ. कुछ एरियाज है जैसे आपने एफएम में बताए, ओटीओबी में भी पाथ गोल थ्योरी है, दैट इज लाइक कमिंग ऑल्टरनेट ईयर. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ऐसी जगह पे हम लोग पहले से श्योर हो कि हमें क्या इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या कंक्लूजन लिखना है, क्या हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम रेडीमेड रखें, सो इट विल डेफिनेटली ऐड द वैल्यू. एंड जो हमारा डेली क्वेश्चन देने का इस बार का रीजन है वो यही है कि जो बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही प्रिडिक्टेबल एरियाज है वो हम टारगेट कर सकें. जैसे लास्ट ईयर भी आपको याद होगा पेपर वन में एफएमआई में हमने देखा कि जो प्रिडिक्टेबल थीम्स थी काफी, बहुत ही इट वाज, जो हमने सोची थी वही आई. आई मीन लार्जली जो भी लोग प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, देन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, तो 3-4 थीम्स जो बहुत समय से नहीं रिपीट हो रही थी, लास्ट ईयर सारी थीम्स उन्होंने पूछ ली. Yes, sir. तो डेफिनेटली अगर ऐसे टॉपिक को हम पहले से प्रिपेयर करके आते हैं तो हमारे लिए एग्जाम में बहुत कंफर्ट लेवल हो जाता है, टाइम सेव हो सकता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ सकते हैं. करेक्ट. एज लाने के लिए यही क्वेश्चंस हमारे काम आएंगे डेफिनेटली. यस सर. और इस जैसे इसका आप कुछ एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट ऑन से डिविडेंड थ्योरी, तो उसको आपको शॉर्ट नोट आपने बना लिया कि यार मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर अजम्पशंस, फिर बेनिफिट्स, फिर इसके शॉर्टकमिंग्स क्या है, एक इलस्ट्रेशन दूंगा. तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार ये 5-6 चीजें मुझे लिखनी है. और अगर आपके पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट होगा ना तो आपका पेन चलता रहेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा. तो व्हेन यू हैव दिस प्रोफोर्मा इन माइंड कि यार गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पे सपोज क्वेश्चन आए, तो किस तरीके से मैं उसको अप्रोच करूंगा, क्या मेरा एक स्ट्रक्चर होगा गिवन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. एक और नेक्स्ट जो 5th टिप मैं देना चाहूंगा पेपर 1 के लिए, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू पेपर 2, इज टू यूज वॉइस क्लिप्स. वॉइस क्लिप्स में क्या रहता है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आज आपने टैक्स का पढ़ा, तो आपने नोटिस किया होगा, जीएस में भी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे टैक्स आज रीडिंग करी तो आपको लगता है यार टैक्स तो अब मैं अनबीटेबल हो गया, टैक्स में मुझे सब कुछ आता है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अभी सब कुछ समझ में आ रहा है. प्रोसेस कॉस्टिंग उठाया तो डब्ल्यूआईपी वाला क्वेश्चन भी मेरे से इजीली हो रहा है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. तो उस तरीके से आपने उसको किया. बट अभी क्या होगा, क्योंकि आप उससे कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं कर पाओगे,
तो नेक्स्ट टाइम आप जब पिक करोगे तो आपके उतना ही एफर्ट्स वापस लगेंगे उसको लाने के लिए। तो जैसे टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि पेंशन्स को किस तरीके से आपको चैप्टर 6A में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपने इसका खुद को एक्सप्लेन करते हुए एक शॉर्ट क्लिप बना लिया कि यार पेंशन्स को ऐसे एडजस्ट करना है, 81A में इस तरीके से जाएगा, 1B में 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है, एम्प्लॉय का इस तरीके से रहेगा, एम्प्लॉय का इस तरीके का, 2-3 मिनट का, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं करता था। फिर पेपर 2 के लिए मैं करता था कि अपने नोट्स जो भी आपने उठाए, आपके शॉर्ट नोट्स हो या फिर फुल नोट्स हो, आप वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए और नॉर्मली आप पढ़ते रहिए उसको। एक आपकी 1.5 आवर्स 2 आवर्स की एक शॉर्ट वॉइस क्लिप बन जाएगी फॉर द पेपर 2 नोट्स, खुद ही की आवाज में, जो आप खुद ही को एक बार पढ़ रहे हो अभी। क्योंकि लर्न जर्नी बहुत लंबी है, 70 डेज की जर्नी है। आपको बहुत सारे दिन आएंगे जिस दिन आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस दिन अगर आप देखोगे कि यार मेरा ओटी पूरा इज रिकॉर्डेड इन 2-2.5 आवर्स, तो आप सिर्फ कान में लगाओगे एंड विल जस्ट लिसन थ्रू। तो उससे आपको होगा कि आप वापस टच में भी रहोगे और एक फास्टर रिवीजन आप उसका कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कंडेंस हो जाती हैं। तो बिकॉज कॉमर्स का सिलेबस थोड़ा वाइड है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होंगी, कुछ फेवरेट्स होंगे, कुछ नॉट सो फेवरेट एरियाज होंगे। जैसे मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ने में मजा नहीं आता था, तो एक्सपर्टीज है बट उसको बार बार देखना थोड़ा बोरिंग लगता था। सो मैंने उसका एक वॉइस क्लिप बना लिया हाफ एन आवर का। अब हाफ एन आवर अब ऐसा लगता है कि वो एफर्ट मैं खुद पढ़ने बैठूं तो मैं उसमें 2 घंटे लगा दूं, बट अगर मैं सिर्फ हाफ एन आवर में 1 घंटे में उसको रिवाइज कर लूँ सुन के, दैट इज मोर इफेक्टिव एंड गिव्स लेस स्ट्रेन ऑन माई ब्रेन। तो ये आइडिया था जो मैं वॉइस क्लिप्स का यूज करता हूँ। जीएस में भी आप इसको अपनी फैक्ट शीट्स या कुछ रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम के पहले आपने फटाफट सुन लिया, तो इट इज वेरी इफेक्टिव। 2-3 टिप और है पेपर 1 में। एक है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन आप जो करते हैं शॉर्ट नोट्स का। तो 5 मिनट्स में आप कभी भी उसको मत पढ़िए, जो आपको 5 मिनट्स रीडिंग टाइम मिल रहा है, बिकॉज एनीवेज आप उसको आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो आप 5 मिनट्स और मेरे हिसाब से 5 to 7 मिनट्स और ले सकते हैं ऊपर। उसको आप इफेक्टिवली यूज करिए इन चूजिंग द क्वेश्चन दैट यू वांट टू अटेम्प्ट। थोड़ा सा आप साइड में सॉल्व भी कर सकते हैं कि अच्छा ये अप्रोच है, ये जाएगा। एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, बट एक अप्रोच अगर आपको आ गया तो आप विद इन टाइम फ्रेम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी टाइम और उस प्रैक्टिकल की वजह से मैं अवॉइड करता था थोड़े से टैक्स के, अमेलगमेशन के, फाइनल अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एक तो टाइम टेकिंग होते थे, बट टाइम टेकिंग होते थे, एंड सेकंड इसमें कुछ भी एक एडजस्टमेंट गलत होता था तो फाइनल रिजल्ट भी गलत होता। जैसे टैक्स का आपने एक एडजस्टमेंट गलत कर दिया तो टोटल इनकम गलत, फिर टैक्स कंप्यूटेशन भी गलत। सो अनलेस मैं पूरा श्योर नहीं होता था उस क्वेश्चन को, मैं नहीं पिक करता था। तो चूज करने में मैं कंसिडरेबल टाइम लेता था। बट इसको आप ऐसे थंब रूल मत बनाइए कि अमेलगमेशन करना ही नहीं है। आप उस दिन के सिचुएशन पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कॉस्टिंग में बहुत श्योर है, उस दिन हो सकता है यू गेट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन कॉस्टिंग जो आपने नहीं पढ़ा, तो फिर आप क्या करेंगे? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बट एक जनरल आप इसको ध्यान रख सकते हैं। एक लास्ट टिप पेपर 1 में टू बूस्ट योर मार्क्स कुड बी दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप थ्योरी डालने का कोशिश करिए जहाँ पे पॉसिबल हो, स्पेस हो, टाइम हो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। थ्योरी क्वेश्चंस में जहाँ पे आप पॉसिबल हो आप इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल डालेंगे। उस तरीके से क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पे, आपने छोटा सा एक न्यूमेरिकल बना दिया, D1 ये है, G ये है, और अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो प्रोबेबल अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस ये आ गई। शॉर्ट 2 लाइन का न्यूमेरिकल वहीं पे आप बना सकते हैं, आप पहले से भी बना सकते हैं। या फिर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की थ्योरी पर आपने सॉल्व करी है, क्वेश्चन है सपोज 15 मिनट्स आपको है उसके लिए, बट आपने 10 मिनट में ही कर लिया, तो गिव 2-3 मिनट्स फॉर राइटिंग सम थ्योरी अबाउट पेपर 1 of that concept. So yeah, these are the main things that I want to discuss about the paper 1. Madhav, I would like to ask a question. Yes, yes. In paper 1, most of the people they face very uh, big issue in the theory that because most of the time is spent in the numerical. पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एंड फिर थ्योरी के समय बचता नहीं है और फिर हमें लगता है कि थ्योरी तो कर ही लेंगे। तो दिस इज वन फीलिंग विच मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट शेयर विद मी एंड स्पेशली दोज पीपल हु आर द प्रोफेशनल्स। तो एक रेसिस्टेंस आता है, एक हेसिटेशन आता है कि थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को करना पड़ेगा। तो एवरीवन नोज थ्योरी इंपॉर्टेंट है पर करता कोई नहीं है। सो हाउ डू यू मैनेज दिस? सर थ्योरी जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, 130 मार्क्स का तो थ्योरी लिखना ही नहीं है। वो भी जब है जब आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हो। यस। अगर आपने 20-15 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में या 20-10 के कॉम्बिनेशन में आपने किया,
तो हर क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स से शॉर्ट नोट्स लिखना है, और 2-3 थ्योरी क्वेश्चन जो आप 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे उसके सी पार्ट में आपके यूजुअली थ्योरी क्वेश्चन तो आपको 130 मार्क्स या प्लस का थियरी करना है, तो सिर्फ पेपर वन को न्यूमेरिकल नहीं देखना चाहिए। एंड दिस कुड बी द मेन रीजन आप पेपर वन में स्कोर कम कर रहे हो, कि आप थ्योरी पे एडिक्वेटली फोकस नहीं कर रहे हो। अब थ्योरी आपको ऐसा पूरा नहीं पढ़ना है, ऑफ कोर्स, बिकॉज पेपर वन इज अ कॉन्सेप्चुअल पेपर, तो आप अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, अजम्पशंस, इंपॉर्टेंट चीजों की लिख पाओगे इजीली। बस शर्त यह है कि आप पीवाईक्यूज देखिए, और जो इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस के एरियाज है उसको आप प्रिपेयर कीजिए। सब कुछ मत प्रिपेयर कीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द पीवाईक्यूज पे आपको फोकस करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द सिलेबस के पॉइंटर्स जो एग्जैक्टली सिलेबस में दे रखे हैं, उस पर आप थोड़ा सा भी कंटेंट क्रिस्प बना लेंगे तो वहां पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और बेटर डिलीवरी हो पाएगी कंटेंट की। ट्रू ट्रू। यस सर। पेपर टू का एक बार देखते हैं। पेपर टू में बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया था इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पे आंसर राइटिंग करना। सो जैसे हम लोग ग्रुप बनाते थे, मैं था उसमें, कमलेश था, he has also secured rank, Amita also gave interview last year, and others have also joined in the past attempts with me. And what we used to do is we used to divide the time for each subject. For example, say we give 8 days to preparation of OT, and then we used to decide that, say, one day we'll do this chapter 1 and 2, then one use ऐसे चैप्टर्स डिवाइड करते थे उसमें। एंड फिर एक जना इनिशिएटिव लेता था और पीवाईक्यू से एनालाइज करके 3-4 क्वेश्चन उस दिन डालता था। तो दैट डेली आंसर राइटिंग आप जब रिगरस वे में करते हैं, एक आप अबव एवरेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, आपने सारी थीम्स को देखा है, स्टडी किया है, और एक दूसरे के आंसर्स देखेंगे, फीडबैक लेंगे, तो बेस्ट होगा। सिमिलर मॉडल आई थिंक सर भी इस बार फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और आपको रिग्रेस करना है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे या फिर अपने ग्रुप से भी इसको कर सकते हैं। आंसर आप लिख नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करिए कि इफ द क्वेश्चन इज कमिंग अबाउट से ऑर्गेनाइजेशंस की एज अ प्रोसेस, या किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, तो मैं क्या क्या उसमें लिखूंगा, अच्छा मेरे कंटेंट क्या क्या आ रहा है, क्या वैल्यू एडिशन मैं उसमें कर सकता हूँ, इंट्रो कंक्लूजन में कैसे लिखूंगा वहां पे, बिकॉज वहां पे आपको रेजिस्टेंस आएगा। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि आप इसके मल्टीपल रिविजन ट्राई करिए, स्पेशली ऑफ पेपर टू, कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, थिंकर्स उतने ज्यादा आएंगे, उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स, कोट्स उतरेंगे। और मेमोराइजेशन इज अ की फैक्टर जो आपको पेपर टू में मार्क्स लेके आएगा, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन। तो जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे चीजों को जो रिक्वायर्ड है, आप पेपर में उतार नहीं पाएंगे विद इन द टाइम फ्रेम। अब रिविजन आप किस तरीके से कर सकते हैं? रिविजन का मेरे को सबसे अच्छा अप्रोच लगता था कि आप एक्टिव रिकॉल करिए कंटेंट को। सो जैसे आपने आज कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपने पढ़ा सपोज, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आपने अभी अपने नोट्स नहीं खोले, आपने सोचा ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आपको क्या क्या याद है, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस स्टेप 1 आपको याद आ रहा है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में की थिंकर उसका कौन था, वो आपने लिखा, एरिक बर्न वाज अ थिंकर। फिर देन आपने सोचा ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या आता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आते हैं, 4 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स लिखे ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए। स्क्रिप्ट एनालिसिस हो गया, रिकॉग्निशन हंगर के लिए आता है, फिर जोहारी विंडो थ्योरी आती है। इस तरीके से आपने उसको लिखा कि मुझे क्या क्या इस चैप्टर में याद आ रहा है। मैक्रो पे गया, फिर अंदर गए, अच्छा जोहारी विंडो में 4 वो क्या थे, जोहारी विंडो की बेसिक में 2 लाइन की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं ओबी में, ओटी में। इस तरीके से आप अपने नोट पेपर पेन लेके आप इसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, पेपर जैसे आप समझेंगे, इसको मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ कि रिवाइज करना है, री रीडिंग नहीं करना है। अपन बोलते हैं रीविजन, मतलब आपके विजन के सामने आनी चाहिए जो आपने पढ़ा है, वर्सेस री रीडिंग। आपने आज पढ़ा एक चैप्टर, कल वापस उसको पढ़ लिया, परसों वापस पढ़ लिया, उससे क्या होगा कि वो सिर्फ आप री रीडिंग कर रहे हैं, रिविजन नहीं हो रहा है, कि वो आपके आंखों के सामने नहीं आ रहा है। बिकॉज अब आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, सो यू विल आइडेंटिफाई एरियाज जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल जोहारी विंडो आप उस वक्त पढ़ते तो हो सकता है आप चारों पढ़ लेते, बट आपने क्योंकि माइंड को थोड़ा स्ट्रेस दिया, या अच्छा यार व्हाट आर द 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें क्या क्या है, अच्छा आई कुड रिमेंबर ओनली 2, बाकी के 2 मुझे याद नहीं आ रहे, तो आपने वहां पे सर्कल मार्क कर दिया। नाउ व्हेन यू विल पिक योर नोट्स, आप पहले उन चीजों को देखिए जो आप भूल रहे हैं,
उससे क्या होगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप उनको नहीं भूलेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिवाइजिंग, और एक्चुअल वे ऑफ रिविजन रादर देन री रीडिंग। जनरली अपन जो अपन क्वेश्चन चूज करते हैं, आउट ऑफ वी गेट 8 ऑप्शंस, 1 of 5 आपको करना है, 3 चुनना है आउट ऑफ 6। तो यूजुअली स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं ओटीओबी में अटेम्प्ट करें, ज़्यादा वहाँ पे थिंकर्स रहते हैं, अपने पास कोड्स और वो भी रहते हैं। ये आपके सब्जेक्टिव है, उस दिन पे भी डिपेंड कर सकता है जहाँ पे आप कंफर्ट लेवल है। जैसे HRM IR में भी आपको अच्छे एग्जांपल्स और कोटेशन हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन पे भी आप इसको दीजिए। अनलाइक पेपर वन, यहाँ पे टाइम आपको इशू नहीं होगा, स्पेशली बिकॉज यूपीएससी में 20 मार्क्स और 15 मार्क्स दोनों के लिए 3 पेजेस ही मिलते हैं। सो आपको 20 20 10 का अगर मिल रहा है तो यू हैव टू राइट ओनली 3 3 एंड 2, 8 पेजेस आपको लिखने हैं। और यूपीएससी में भी 15 मार्क्स का मेंस में क्वेश्चन आता है, जीएस में उसमें भी आपको 3 लिखना होता है, तो 20 मार्क्स में भी आपको 3 पेजेस ही भरने होते हैं इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर 2 में। तो टाइम का इशू आपको नहीं आएगा, अच्छे से आप उसको लिखिए, प्रॉपर राइटिंग में प्रेजेंटेशन उसका अच्छा कर सकते हैं, और ट्राई करिए कि क्या वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते हैं, एग्जांपल्स थिंकर्स आप डाल सकते हैं, कोट्स एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के मटेरियल्स को यहाँ पे ला सकते हैं। आपको ये सब ध्यान रखना है, बट इसको ओवरड्यू नहीं करना है। दिस इज एज वी से, इट इज ओनली द चेरी ऑन द केक। आपको केक फिर भी आपका कंटेंट रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, किस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल ओरिएंटेड आप नहीं कर सकते। और जो यहाँ पे most मेरे को important topic है, मेन, sorry to interrupt, जो कोर चीज है ना उसको मिस नहीं करना है। लाइक करेक्ट करेक्ट, ओटी में जो कोर कॉन्सेप्ट है, सपोज देर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सो यू हैव टू फोकस ऑन द कोर एस्पेक्ट, जो उनके कीवर्ड्स है ना उसको मिस नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक हल्का सा हिंट दे देते हैं एंड देन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग थ्रू द एग्जांपल। सो एक्सप्लेनिंग थ्रू एग्जांपल इज नॉट ओके, जस्ट गिविंग द हिंट ऑफ एग्जांपल इज वेरी वेरी मच सफिशिएंट। यस और यस, आपका जो पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, कि इवन वी कैन मेक एचआरएम एंड आईआर आल्सो एज अ फर्स्ट चॉइस if we have good examples in human resource management. In human resource management, there are lots of examples available as compared to OTOB. We have more examples in HRM nowadays. यस तो जैसे आपने भी लास्ट टाइम देखे होंगे जो मेंस यस 24 में यस, हमने एग्जांपल दिए थे, हैंड रिटन एग्जांपल्स। तो did you find those examples? Were you able to use that examples in that paper? यस सर। सो HRM. नेक्स्ट पॉइंट में वही डिस्कस करने वाला था वैल्यू एडिशंस के बाद, कि यहाँ पे मेरा मेन एसोसिएशन था लास्ट ईयर सर से। सो कोई स्पेसिफिक क्लास लेने का तो मेरे पास बैंडविड्थ था ही नहीं, और इतना मैं रिक्वायरमेंट फील भी नहीं करता था, ना कि डिटेल नोट्स में जाने का। तो सर से लास्ट ईयर इंटरेक्शन हुआ था और समझ में आया था कि एक थोड़ा सा फीडबैक से इम्प्रूव हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स दी वैल्यू एडिशन मटेरियल जो सर शेयर करते हैं, कोड्स वगैरह, एग्जाम्पल्स हैं, कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस का कंपाइलेशन, तो जहाँ पे मेरा गैप था मैं वहां से उस चीज को पिक कर लेता था, अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट फीडबैक। तो टेस्ट में भी कुछ चीजें अपने को समझ में आती है जब आप लिखते हो कि यार इस पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लग रही है, तो उसको पिक कर लेते हैं। सेम गोज फॉर कोट्स की, ये जेनरिक कोट्स हैं, कोट्स यूजुअली मुझे याद करने में बहुत पेन होता है, एग्जैक्ट उसको रखने में, बट थोड़े से एफर्ट से आप बेटर कर सकते हो अपना आंसर। शॉर्टर कोट्स आप लीजिए, उन कोट्स को पिक करिए जो ज्यादा आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप सोचिए कि मैं इसको कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ, तो उस तरीके से आप यूज करिए, ओपन एंडेड थोड़े से। एंड सेकंड, जो सर कॉर्पोरेट एग्जांपल्स की बोल रहे हैं, एचआरएम में सर का काफी डिटेल्ड कंपाइलेशन है उस पर। सो दैट आल्सो हेल्प यू इन गिविंग एग्जांपल्स, नॉट ओनली ऑफ द टॉपिक, बट आपको सब टॉपिक्स के भी मिल जाएंगे। जैसे मुझे याद है ट्रेनिंग में भी सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स कलेक्ट करे हैं कि एथिकल Yeah, ट्रेनिंग किस actually, तरीके से। I have taken those examples from very good books. जितनी भी human resource management की बुक हैं, तो जब मैं फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ तो I always pick up the examples from there. तो वो सारे examples मैंने compile करके I gave to the mains students. तो मुझे हाँ लगता सर, है कि मेरा एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखने का तरीका बदल जाता है जब मैं एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और मुझे बिल्कुल लगता है कि सर। सेम थिंग स्टूडेंट्स कैन, आई मीन, इन आवर आंसर्स आल्सो वी कैन डू इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द एग्जांपल ड्रिवन क्वेश्चन, एग्जांपल ड्रिवन आंसर कैन बी देयर इन सम टॉपिक्स, बिकॉज वहां पे कुछ ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हमारे पास लिखने के लिए ज्यादा नहीं होता। इनफैक्ट देयर आर सम टॉपिक्स वेयर इट इज डिफिकल्ट टू गेट 150 वर्ड्स और इवन 250 वर्ड्स। अगर वो शॉर्ट नोट पूछते हैं, सपोज उन्होंने क्वेश्चन पूछा एथिकल ट्रेनिंग और एडल्ट
तो वहां पर हमारे पास कंटेंट होता ही नहीं है, वही घुमा फिरा के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखते हैं। बट वहां पर अगर हम अपना कोई इस तरह का एग्जाम्पल ऐड ऑन कर दे, जैसे एक टॉपिक है 360 डिग्री ट्रेनिंग, तो वहां पर इतने एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं कॉर्पोरेट्स के कि कैसे कैसे सही अलग बात है अलग लोग, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में हम अगर ट्रेनिंग के टाइप्स, अगर जो उनका नाम होता है द नेम इटसेल्फ मेक्स द फीचर क्लियर कि व्हाट दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, बट Yes. उसके एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो दैट कैन रियली ब्रिंग द वंडरफुल मार्क्स। इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशली आई विल से वी हैव टू ऐड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, एंड इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्चुअली जो हमारी नेशनल लेबर कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, दीज रिकमेंडेशंस कैन डू वंडर्स। ये चीज मोमेंट पे लास्ट ईयर शेयर की थी। आई डोंट नो वेदर यू पीपल वर एबल टू इनकॉर्पोरेट इट और नॉट, बट स्पेशली सम पीपल वर आस्किंग मी सर आईआर में कैसे वैल्यू एड करें। सो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ बुक्स एंड आई फाउंड कि कुछ एक कॉमन रनिंग थीम है जो हम लोग नॉर्मली फॉलो नहीं करें, दैट इज नेशनल लेबर कमीशन रिकमेंडेशंस। सो वो चीजें हैं जो हमारे लिए ऑथेंटिकली, जैसे हम लोग जीएस में सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन ऐड ऑन करते हैं, आईआर में वी कैन ऐड ऑन दीज इंस्टेड ऑफ राइटिंग जनरल सजेशंस, वी कैन ऐड सम ऑथेंटिक पॉइंट्स। यस सर, वही सर। एक्शन भी इज आल्सो वेरी गुड इफ यू कैन डू। हाँ सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इतने सारे एग्जांपल्स हैं। एथिकल ट्रेनिंग का अलग, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग का अलग, एक माइक्रो ट्रेनिंग का भी था, उबर का आपने लिखा था 10 मिनट्स का कुछ ट्रेनिंग देते हैं यस, वीडियोस को तो। माइक्रो लर्निंग है, माइक्रो हाँ, लर्निंग ट्रेनिंग, देयर तो इज इस अ ऐप। तरीके से अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पे ही आ गया और आपने इतने एग्जांपल्स से सब्सटैंशिएट किया तो वो बहुत अच्छा जाएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा लिखते हुए। सो ये था मेन मेरा पेपर 2 का। सर एक 5 days। Sorry to interrupt you, Madhav. Here, I would like to emphasize one thing. कि we have the examples and we arrange these examples, ठीक है. But the major problem is aspirant faces that they are not able to incorporate in the answers. When it is the actual answer writing, they are not able to incorporate. So I have a small tip there that from the starting only, please start visualizing that where all I will be using this example. और जब भी आप आंसर की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, प्लीज अगेन रिकॉल दैट ओके आई विल यूज दिस एग्जांपल, आई विल यूज दिस एग्जांपल, आई विल यूज दिस एग्जांपल मल्टीपल टाइम्स। तो आई मीन आपका थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी एक्टिव रिकॉलिंग में, जैसे आपने बताया माधव कि हम एक्टिव रिकॉलिंग करना अच्छा रहता है, तो एक्टिव रिकॉलिंग में भी आपको एग्जांपल्स को लाना होगा। हाँ लाइक बिल्कुल सर। you have to make your examples part of your mainstream preparation, you know, not use it कि ठीक है वैल्यूएडिशन के लिए तो है, बाद में इसको पढ़ के चले जाएंगे और एग्जाम्पल तो याद आ ही जाएंगे, बट याद आते नहीं है एक्चुअली। जब हमारे सामने पॉइंट होता है तो पॉइंट के साथ एग्जाम्पल ऐड नहीं कर पाते हैं, और वहीं पे डेली आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस आती है। अगर हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं, वी फेस डेली स्ट्रगल इन रिकॉलिंग द एग्जाम्पल, और फिर हम एग्जाम्पल जाके वापस से पढ़ते हैं, तो देन वी से ओ यस, इस एग्जाम्पल था बट हमें याद नहीं आया था। तो रियल लर्निंग होती है जब आप डेली बेस पर स्ट्रगल करते हो वैल्यू ऐड करने के लिए, और डेली बेस पर आप सोचते हो कि ओके हाउ कैन आई ऐड द वैल्यू, हाउ कैन आई ऐड द वैल्यू, हाउ कैन आई ऐड द वैल्यू। So this daily practice is more important rather than the last moment having compilation and going through and then expecting that I will be able to write. करेक्ट सर। एंड ऑल्सो सर यही मेमोराइजेशन के वक्त ही, एक्टिव रिकॉलिंग के वक्त, यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर, जैसे आपने एग्जांपल्स बोला, डायग्राम्स भी आप सोचिए कि आपने कुछ डायग्राम बनाया होगा उस टॉपिक का। अच्छा, इस टॉपिक मेरा ये टाइप का डायग्राम है, ये करूंगा मैं ड्रॉ, ये मेन थिंकर्स हैं जो मुझे लेके आने हैं, कि क्या वैल्यू एडिशन आप करोगे। अगर आप अभी से सोचोगे तो उसको कहीं ना कहीं आप यूज कर लोगे सोल्यूशंस में, एंड में, कंक्लूजन में। उस चैप्टर का आप कोई रेफरेंस लेके आइए। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा स्पेसिफिक अपना कंटेंट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा सीखने। True. And there are some common running themes like principles of Fayol. So हमें हमें सबको पता है principles of Fayol है, 11th 12th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं, but I see people rarely use those principles in their answers. And in every topic of OT and OP we can use principles of Fayol, principles of Ulrich, Weberian principles, Taylor principles, especially। तो ये जो theories हैं इसको हमें जहां पर भी पॉसिबल हो, वी हैव टू यूज दैट एंड वी डोंट हैव टू थिंक कि ओवरडू हो रहा है, ये फेल हम हर जगह यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो है, आप इसको यूज कीजिए। बिल्कुल सर। लास्ट चीज मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, वो 5 days में कैसे यूज करना है।
तो यूजुअली जैसे पहले मेरे पिछले अटेम्प्ट्स में मैं ट्राई करता था कि 4 दिन में एक ही रिवीजन हो पाता था ऑफ द कॉमर्स पेपर, बिकॉज फिर अब थोड़े नोट्स बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं, अपन लिख लेते हैं, समराइज हो जाता है। तो इस बार मैंने ट्राई किया था कि यार एटलीस्ट पेपर 2 के मैं 2 रिवीजन ट्राई करूंगा इन दोज 5 days। सो डे 1 पे मैं रिवाइज करता था सपोज FM, टैक्स, OT एंड IR। तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहता था, FM, टैक्स, OT एंड IR, इसको मैं रिवाइज करता था। जो भी मैंने लिख रखा है कि मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, वो करता था। फिर डे 2 पे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, OB, HRM, टाइम मिला तो थोड़ा बहुत ऑडिट, इस तरीके से इसको अप्रोच करता। OB, HRM थोड़े लिंक भी होते हैं, साथ साथ फ्लो होते हैं, तो उसको साइड में रख लिया। फिर डे 3 पे आके हो सकता है आपने भी इतना एम्बिशियस प्लान रखा हो, आपको थोड़ा सा लीवे रखना चाहिए डे 3 पे। तो डे 3 पे मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ लेता था, जो गैप रहता था वो कवर करता था, और पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ आंसर्स लिखता था। बिकॉज क्या होगा, क्योंकि आप GS के मोड में हैं पिछले 15 दिन से, आपका माइंडसेट थोड़ा GS 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 जैसा लिखना हो जाएगा। बट अगर आप वापस से 5 days में आके कुछ आंसर्स लिखते हैं, 2-4 आंसर ही लिखिए, अगर आपके पास टाइम है तो हाफ लेन टेस्ट दे दो, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ऑफ बोथ द पेपर्स, तो एक आप वापस फ्लो में आ जाएंगे और बेटर आंसर लिख पाएंगे ऑन द डे। डे 4 पे आप वापस से, क्योंकि आपका फ्री है, आप थिंकर्स, कोड्स, वैल्यू एडिशन अपना ये रिवाइज कीजिए। डे 5 यूजुअली आपको ट्रैवल करना रहता है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे वापस सेंटर पे जाएंगे। थोड़ा बहुत लैंग्वेज पेपर्स को भी अपने देखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज से भी बहुत ब्रेक हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम आप इवनिंग में उसको देंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक आता है कि सैटरडे को आप क्या करते हैं, सैटरडे को सुबह सबसे पहले आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है 9 से 12, फिर आपके पास 12 से 2 का ब्रेक होता है। तो यहाँ पे 12 से 2 के ब्रेक में आप यूजुअली लैंग्वेज पेपर की तैयारी तो करते नहीं है, आप इंग्लिश या फिर उसके बारे में जनरली आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे पेपर्स अगर इंग्लिश में दे रहे हैं तो वहाँ पे इतना इशू आता नहीं। तो वहाँ पे 1 घंटे को भी किसी पेपर 2 के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, आधे आधे घंटे में से OT OB या OT IR आप रिवाइज कर लीजिए ऑन दैट 1 hour लंच ब्रेक। इंग्लिश रिवाइज करने का कुछ ज्यादा सेंस नहीं। फिर आप आएंगे 6 बजे तक आफ्टर 5 PM। फिर आपके पास 6 to 11 टाइम होगा, और 1 घंटा सुबह होगा मैक्सिमम पढ़ने के लिए। तो मैं आके वापस से 1 घंटा पेपर 2 को देता था, एंड फिर पेपर 1 में लग जाता था रिविजन। 4-5 hours पेपर 1 को, एंड 1 घंटा 2 घंटा को एक लंच वाला ब्रेक, और ये देता था इसमें। फिर सुबह उठ के पेपर 1 देते थे 9 to 12, फिर वापस 1 घंटा आपके पास लंच ब्रेक होता है। उसमें यू कुड गिव 15 minutes each to OT OB HRM IR। इन दोज 15 minutes यू कैन रिवाइज इंपॉर्टेंट थिंकर्स, एग्जाम्पल्स, वापस से आप एक बार सरफेस पे ला सकते हैं बिटवीन द लंच ब्रेक। सो इससे आपको एक प्रॉपर जोन में आ जाएंगे आप फॉर राइटिंग अ इफेक्टिव पेपर। सर दीज आर माय फाइनल टिप्स जो मुझे शेयर करना था। कुछ स्पेसिफिक डाउट्स होंगे फर्स्ट फॉर द मेंस 2024 स्टूडेंट्स? सर आप जैसा बोलिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप चैट में भी डाल सकते हैं, There is a या फिर question mark. डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। यस सर। Yeah, there is a question regarding accounting standard. So do you have the chat with you? There is a, यस 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 सर। So there is a question with Ritesh. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसे क्वेश्चन आता है अपने पास, थोड़ा सा कंटेंट कभी कभी क्वेश्चन ही देता है आपको कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। कुछ क्वेश्चन और देख पाते तो इजी होता, बट कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट डायरेक्टली ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आ सकता है। या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक आ सकता है, जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन वाले कॉन्सेप्ट्स में आते हैं कि टाइमिंग और उसकी कब उसको कितना रिकॉग्नाइज करना है, टाइमिंग एंड क्वांटिटी किस तरीके से वेरी करती है। तो नाउ दे आर आस्किंग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ AS9। आप जब स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है तब तो आपको उसी को कैटर करना है और अपने इनपुट्स को लेके आने। बट सपोज देयर इज अ क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो आपने जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ा होगा, तो जब आपने एक्टिव रिकॉलिंग भी करी होगी या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो आपने डिफरेंट चीजें लिखी होंगी कि यार क्या क्या इस AS में कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एग्जैक्टली इज गवर्नमेंट ग्रांट्स,
टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्या क्या टाइप के गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या रहता है, आप इन द बुक्स लेके जाते हैं पीएनएल में, क्या आउटसाइड लेके जाते हैं, फिर अलग अलग नेचर पे वो लोग चेंज होते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स के। सेकेंड एस्पेक्ट रहता है कि क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, रिकग्निशन जब हो गया, क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फॉर रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, कि श्योर होना चाहिए आप कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे। सेकेंड होना चाहिए कि यू आर श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिसीव दैट ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो अभी आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर कुछ प्रेजेंटेशन के आप आखिरी में डिस्क्लोजर्स कुछ दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में आप क्या डिस्क्लोजर कर सकते हैं। दिस इज जनरल फॉर्मेट दैट यू कैन फॉलो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लगे ये फॉर्मेट हो गया, फिर सपोज कोई एसेट वाला क्वेश्चन हो गया, से फिक्स्ड एसेट्स पे आ गया एएस, तो उसमें भी आप सेम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स पे आ गया कि इन्वेस्टमेंट की, अब एसेट होता है तो उसकी इनकम हो सकती है, तो एसेट इन्वेस्टमेंट है, उसकी इनकम कैसे रिकग्नाइज होगी, रिवर्स कैसे होगी, एसेट्स का कैटेगराइजेशन, इस तरीके से आप ब्रेक ब्रेक करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, आपको वहां पे कुछ और एक्सपर्टीज अपना नहीं दिखाना है। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट, रुपेश। 2025 students, please ask your questions. And this question can be about anything, any problem that you are facing. Garima, there is a question. यस सर। जैसे अ, अगर आपने सीए इंटर का आपका मॉड्यूल है, तो एक डेफिनेटली एक कंफर्ट आता है आप अगर अपने पुराने मटेरियल को देखते हैं। जैसे एक सीए इंटर हो गया, या फिर आपका ग्रेजुएशन हो सकता है कॉमर्स में, तो क्योंकि आपने अगर सपोज वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, वहाँ पे मेहनत करी है, अगर आप वापस अपने नोट्स को एक बार गो थ्रू करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक कंफर्ट आता है और ईज होती है आपकी प्रेपरेशन, राइट। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट उसको आप लेवल, बस ये ध्यान रखिएगा कि लेवल आप उसको यूपीएससी स्टैंडर्ड ही रखें। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑब्सक्योर आते हैं, बट कभी कभी आप देखेंगे डायरेक्टली सीए इंटर से भी यूपीएससी ने पिक करे हैं क्वेश्चन पास्ट में, तो वो आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देगा। बाकी आप कोई भी मटेरियल यूज करिए कोचिंग्स का फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज उन लोगों ने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप यूज कर पाए, राइट। In fact, I would like to add one thing here यस कि सर। गरिमा, अगर आप ऑलरेडी आईसीआई सी एंटर हैं तो आप स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपको कंटेंट पूरा आता ही है और आपको सब कॉन्सेप्ट पता ही है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ते रहिए, एंड यू वेरेवर यू फील यू आर लैकिंग यू कैन ऐड ऑन द कंटेंट देयर, सो दिस थिंग कैन वर्क। यस सर, उससे आपको एक डेप्थ भी मिल जाएगा। मैं भी जैसे प्रैक्टिस मैनुअल आता था पुराना सीए का, तो वो क्योंकि मैंने देख रखा था, तो मैं उसको कभी कभी रेफर करता था फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि एक टाइम के बाद सेम सेम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, right? Corroborated by the fact that Bhakta Yeah, Arpita, you have some question? I think this is a mistake. In fact, CA जो scanner होता था, I prepared the MIS paper from previous year question only, and I got 80 plus marks. तो वहाँ पे तो अभी ऐसे ही और Previous year question. यूपीएससी में भी स्कैनर है सर, पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट Actually, उसको ड्यू इम्पोर्टेंस देते नहीं है। बिल्कुल, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि लास्ट ईयर जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलीज किए थे, तो वन स्टूडेंट ही वाज फर्स्ट अटेम्प्टर एंड ही यूज्ड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, थ्योरी वाला जो था पेपर 1 का, पेपर 2 ही जस्ट फॉलोज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, और कह रहा है सर मैं उसी को रट के चला गया, एंड ही गॉट द मार्क्स इन द रेंज ऑफ 250 टू 260। तो आपने देखा होगा पूरा डिटेल में है, लाइक पूरा कंटेंट मैंने उस पर डाला हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हुआ है कि अगर कोई इसको एज ए मेजर रिसोर्स भी यूज करना चाहता है ना, क्योंकि किस स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, लिटरली टाइम नहीं होता, प्रीलिम्स के बाद दे स्टार्ट ऑप्शनल एंड दे कैन नॉट डू सो मच ऑफ रिसर्च कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, देन दे फाइंड आउट द कंटेंट इन मटेरियल, फिर वो उसको सेग्रीगेट करें एंड ऑल। तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन आए हैं वो ऐसे बनाए हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ और सर। उनकी जो
ये है। जैसे पेपर वन में जो थ्योरी के सॉल्यूशंस हैं उनकी जो सिक्वेंसिंग मैंने की है उस तरह से किया है, सपोज इट इज अ डिविडेंड चैप्टर, तो जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग में डाला है मैंने, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लाइक, अगर कोई इसको एज ए रिसोर्स यूज करना चाहे कि उसको कोई बुक रेफर नहीं करनी है थ्योरी के लिए, तो स्टडी मटेरियल भी रेफर नहीं करना, किसी का कोई कुछ नहीं रेफर करना, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें जो बॉडी कंटेंट है वो आपको पूरा मिल जाएगा। हाँ, इंट्रोडक्शन बॉडी, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, दैट पार्ट डेफिनेटली यू नीड टू ऐड, बट जो सॉल्यूशन है वो अगर आप उसी को डिटेल में चले जाओ तो आई कैन एश्योर यू कि आपका जो एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे, कम से कम एवरेज लेवल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद तो डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से टॉपिक टॉपिक देखना पड़ता है कि कुछ मिस तो ना हो जाए मेरा, या कोई नया टॉपिक भी है तो वहाँ पे क्या ऐड करना है, लेकिन एक एवरेज लेवल पे आप पहुंच जाओगे सिर्फ पीवीसी क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो दैट इज वन थिंग यू कैन डू। बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें शुड बी फोकस मोर ऑन थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल मोर न्यूमेरिकल एज दे आर स्कोरिंग। अपन ने डिस्कस भी किया आई थिंक इस सेशन में बहुत डिटेल में, आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर लीजिए। बट समरी में मैं बताऊंगा आपको, थ्योरी को भी नंबर प्रैक्टिस और एडिक्वेट इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। 130 मार्क्स का थ्योरी आपको यूजुअली अटेम्प्ट करना ही पड़ता है इन पेपर वन। सो आप उसको पीवाईक्यू थीम्स को समझिए और उस पर फोकस करिए। न्यूमेरिकल्स आर अ डबल एज सॉर्ड, अगर आज आप कर पा रहे हैं और उस दिन आपकी एक्यूरेसी नहीं बैठी तो वो सीधा आपको नेगेटिव नंबर देगी, क्योंकि उसमें आर या पार होता है सीधा। अगर आपको एकदम सही है तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए न्यूमेरिकल्स को, बहुत ठीक है, अच्छी बात है न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं, बट थ्योरी को भी आप फोकस करिए। आकांक्षा का क्वेश्चन है कि हाउ टू रिस्टार्ट आफ्टर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स टू ब्रिंग बैक द फ्लो। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है अभी कॉमर्स में, आप उसको एक बार ध्यान रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रीलिम्स फेल हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्टेज अगर फेल होने के लिए है पूरे साइकिल में तो प्रीलिम्स है। क्योंकि अगर अभी आपको पता चल गया आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, एंड यू हैव ऑलमोस्ट अ ईयर टू द नेक्स्ट प्रीलिम्स, तो आपके पास कंसिडरेबल टाइम है ग्रो करने का, मेंस की प्रिपरेशन करने का और डिटेल स्ट्रैटेजी बनाने का। कंपेयर टू आप इंटरव्यू की स्टेज पे फेल होते हो जिसमें आपके पास 3-4 दिन ही होते हैं, कुछ पॉइंट नहीं है, और मेंस के बाद फेल होते हो तो आप मेंस और मेंस के रिजल्ट के बीच में 2-3 महीने रहते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स उसको यूज नहीं कर पाते हैं एंजाइटी वगैरह के चक्कर में। तो अभी आप अगर इसको बेस्ट यूज करेंगे टाइम को तो वो रहेगा। आपने बेस्ड ऑन योर प्रेपरेशन आप इसको देखिए कि आपके पास नोट्स हैं फॉर योर कॉमर्स प्रेपरेशन। अगर आप स्पेसिफिक उसकी बात करना चाहेंगे, जीएस के आप नोट्स बनाने का ट्राई करिए अपने, और बट पहले एक बार एक राउंड ऑफ रिवीजन दीजिए। अगेन फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, कुछ पार्टनर्स आप ढूंढ सकते हैं थ्रू कॉमन टेलीग्राम ग्रुप्स या वो सब, तो उससे आप प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज को ब्रेनस्टॉर्म करिए लिखने का, दैट वुड हेल्प। कोई सपोर्ट आप सर से भी ले सकते हैं with respect to any feedback etc. Limited source to refer to for BCom graduate. So जैसे अपन बीकॉम में पढ़ते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओटी ओबी का एम्फेसिस में भी उतना नहीं हो आपके बीकॉम में, ऑनर्स में अलग रहता है उस तरीके से। तो सोर्सेस तो यही हैं जो मार्केट में है, आप सर का मटेरियल है, आपको बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करके समझना है और अंडरस्टैंड करके उसको रेप्लिकेट करना है कि किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। बीकॉम का मटेरियल आप डायरेक्टली यूज करेंगे, उसको कवर टू कवर पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक वो हेल्प करेगा। जो सर ने और कोचिंग से उनने मेहनत करी है उसको नोट्स बनाने में, आप उसको यूज करिए, और जहाँ पे डाउट्स हो आप फिर जज कर सकते हैं कि आपको क्लास लेना चाहिए क्यों। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेपर 2 में मैंने मटेरियल पढ़ा था, तो इनिशियल वे में मुझे थोड़ा दिक्कत आती थी समझ में। पेपर 2 में जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारी डायरी में इसके नोट्स सेल्फ स्टडी के लिए परफेक्ट हैं। ओनली नोट्स आई एम कॉन्फिडेंट, अगर आप थ्योरी में कंफर्टेबल हैं, अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, तो हमारे जो नोट्स हैं दे आर 100% परफेक्ट फॉर दैट, क्योंकि ये नोट्स वो इस तरह से बनाए गए थे कि अगर किसी को सेल्फ स्टडी करना है तो इट इज परफेक्ट एक्चुअली। सो यू कैन रिलाई ऑन दैट, आई एम एश्योरिंग यू। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि डिटेल में नोट्स हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी ओबी की बुक 350 पेज की है, 350 पेजेस की, सो इट्स वेरी डिटेल। मैंने खुद अपने हाथ से प्रिपेयर किया है, और मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि सारी चीजें वहां पर आए। तो
अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स, यू कैन रिलाई ऑन दैट, आई कैन एश्योर यू दैट। और वो ग्रेजुअली उससे उसको इतना देख के डरो नहीं, कोई भी आप सोर्स पिक कर रहे हो सर, इतने बल्कि बल्कि सोर्सेज होते हैं ऐसा। कैंडिडेट जो एकदम बीकॉम बैकग्राउंड से आता है वो 20 क्वेश्चन पढ़ के और छोटी सी किताब पढ़ इसमें के क्या क्लियर कर रहा है, उसको बहुत डर लगता है कि इसमें क्या भाई होता है, कहाँ आ गया मैं। इसमें क्या होता है कि पहले अगर हम बहुत शॉर्ट सोर्स से स्टार्ट करते हैं, बाद में हमें प्रॉब्लम रियलाइज होती है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा। देन पीपल गो टू द मार्केट एंड दे गो फॉर द बुक्स, एसपी रोबिन्स खरीद लो, सिंगन छाबड़ा खरीद लो, सीबी गुप्ता खरीद लो, दैट बिकम्स अनदर प्रोजेक्ट, वो एक नया प्रोजेक्ट बन जाता है कि अब 6 महीने उसमें लगाओ। मैंने सारी प्रॉब्लम फेस की है वाली माई सेल्फ। सो हाँ वो तो जो पॉइंट है। डायडमिंग है, ये इसके जो मटेरियल बनाने का पर्पस था, ये डिटेल में बनाने का, वो यही था कि इट कैन बिकम ए वन स्टॉप सॉल्यूशन। और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए जाना है, तो रिवीजन के लिए फिर हमने उसके रिवीजन नोट भी बना दिए, जिसकी आप बात भी करे थे माधव, जो हमने कोमा कोमा करके जो मेन मेन पॉइंट है। तो पहले आप एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कीजिए। अभी जल्दी में मत रहिए कि मुझे सब चीज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए मेरे पास में, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगी वो, आपके आंसर्स हम्म। में वो डेप्थ मिसिंग होगी, आपके आंसर्स में वो इंटरलिंकिंग मिसिंग होगी, और आपका आंसर बहुत ही सुपरफिशियल लगेगा। तो पहले मुझे मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, उसके लिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप सोचिए कि उसको कैसे समराइज करना है, आप वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए, या फिर हमने भी रिवीजन नोट्स निकाले हुए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो हमारी बुक के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपको फेस्ड मैनर में जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट थिंक कि इन द फर्स्ट गो ओनली आई विल डायरेक्टली रेफर टू द रिवीजन नोट, बिकॉज उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, याद कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। सर ये एकता लोधी का है कि आंसर राइटिंग कॉपीज, आई थिंक आंसर राइटिंग कॉपीज सर ने चैनल पे भी शेयर करे हैं मेरे। यस। और भी हाँ। मैं मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। हाँ, मैं और कॉपी कॉपीज उस शेयर पर पोस्ट कीजिए, कर और भी दूंगा। कॉपी शेयर कर देंगे, बाकी आप हाँ अपने हाँ। टेलीग्राम माध्यम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कॉपीज तो मतलब ठीक है, आप उससे थोड़ा एक आइडिया ले सकते हैं, बट वो थोड़े इवॉल्व होते हैं धीरे धीरे वो बेटर होते हैं और वर्क करते हैं, स्टाइल भी चेंज होता है। आप मेरे 1-1.5 साल पहले का 2 कॉपीज देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे आंसर लिख रहे हैं, अभी आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो थोड़ा सा इवॉल्व भी होता है। अपन भी जैसे अपन पढ़ोगे ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स बीइंग्स, अपन ऑर्गेनिक नेचर में उसको लिखते हैं। तो आज मैं जैसे आप कोई क्वेश्चन दोगे मुझे मेंस का, तो मैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, स्पेशली ओपन एंडेड क्वेश्चन, और हो सकता है एग्जाम में मैं कुछ अलग तरीके से उसको लिख के आऊँ। तो आप उससे आइडिया जरूर लीजिए, बट एकदम उस पर रिलायंस का नीड नहीं है। राइटिंग टेस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स पोस्ट। ठीक है, आपको फर्स्ट रिवीजन के बाद ही आप टेस्ट लिख पाएंगे, बट ऐसे फर्स्ट रिवीजन आपका पूरा ऐसा नहीं कि एक सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे तब भी फर्स्ट रिवीजन होगा। जैसे आज आपने ओटीओबी पढ़ा 10 दिन में, अब ओटीओबी का टेस्ट लिख दीजिए। फिर आपने एफएम पढ़ा, एफए पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, उसका टेस्ट लिख दीजिए सेक्शनल। उस तरीके से आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप 30 डेज रिवाइज कर रहे हैं कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वो भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। कौशल आपने जैसा बोला है, रिविजन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है कोर्स सिलेबस का, बट आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं बीच बीच में। टू टेस्ट योर प्रिपरेशन, थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस होता है। इवन यू कैन राइट डेली आंसर्स, एक दो आप लिखिए कोई ग्रुप बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैंने रैंकर्स पे भी ज्वाइन किया है, डीएडमी पे ज्वाइन किया है, सबका अपना अपना एडवांटेज है। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर का लास्ट ईयर मेरे को काफी फीडबैक मिला था डीएडमी पे। और टेस्ट का मुझे एक फॉर्मेट ये अच्छा लग रहा था कि लास्ट ईयर मुझे बहुत ज्यादा उसमें आंसर राइटिंग पे एफर्ट्स टेस्ट बेसिस पे नहीं देना थे। सर के एक तो हाफ लेंथ टेस्ट थे तो उससे थोड़ा टाइम भी बचता था, और एक वीकली वो चलता था तो शेड्यूल में उसको मैं पढ़ता रहता था। एंड बाकी मैं टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा डेली आंसर राइटिंग को आप करते हो। अब आप उसको ग्रुप में लेके करिए, फीडबैक लीजिए एक दूसरे के आंसर्स पे, पीयर रिव्यू करिए, जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है सर अवेलेबल रहते हैं, सर से आप बात करिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। मेन आइडिया है कि आपको किसी भी तरह से, जिस भी तरह से पुश मिलता है, आपको हाँ ग्रुप बना हाँ। के मिलता है, प्रोग्राम ज्वाइन करके मिलता है, आपको सेल्फ मिलता है, जो जैसे ही पुश मिले आपको करना है। डेली बेसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द टेस्ट। चाहे आप बिगिनर करेक्ट हैं करेक्ट। चाहे आप प्रो हैं, डेली तो करना ही पड़ेगा। टेस्ट सर मैं तो लिख ही नहीं पाता था, मतलब जीएस में भी मेरे को बहुत बड़ा इशू आता था
कि बड़ा जैसे टेक्निकल अपना बैकग्राउंड है सर सीए का, तो अपने को हम्म। टू द पॉइंट लिखने की आदत होती है, ये पूछा तो अपन वो लिखेंगे और आ जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लेयर चाहिए, आंसर राइटिंग का, इंट्रो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। इतना मेरे को रेजिस्टेंस आता था लिखते वक्त कि डायरेक्ट अगर मेरे को 20 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे दोगे तो मैं फेंट हो जाऊँ। मैं और ग्रेजुअली स्टार्ट किया, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मैक्सिमम लिखो लोग 10। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लिख ही नहीं पाते। द रीजन इज वेरी हाँ, कोई सिंपल। पॉइंट ही नहीं है सर, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है उसमें। यस यस, क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग वैसी करनी पड़ेगी आपको। जब आप डेली हम्म, टेस्ट आप लिखोगे तो आप उसको टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखिए कि मुझे कोई टेस्ट बिल्कुल। है। आप उसको प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए कि मैं आंसर बिल्ड करना सीख रहा हूँ, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी। और उसको बहुत ज्यादा टाइम लाइन में मत डालिए कि आई हैव टू राइट इन 7 मिनट ओनली। यू कैन टेक 10 मिनट ऑल्सो इफ यू आर राइटिंग करेक्ट आंसर। देन स्लोली स्लोली यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग द टाइम, कि पहले 10 मिनट लगते थे, अब 9 मिनट लगते हैं, अभी 8 मिनट लगते हैं, एंड फाइनली 7 मिनट। So first priority should be that you start writing the answer in a complete format. आप वो आंसर बिल्डिंग सीखिए। आंसर राइटिंग तो हो जाएगा, प्रैक्टिस आई मीन टेस्ट तो हो जाएगा लेटर ऑन। करेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आई थिंक बेनिफिट करेगा पूरा ही, नॉट जस्ट एन ऑप्शनल जीएस ऑल्सो। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। मोनिका का क्वेश्चन है, कैन वी प्रिपेयर ओनली द थ्योरी पार्ट ऑफ टैक्सेशन एंड लीव द प्रैक्टिकल पार्ट? इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक मिडिल पाथ सजेस्ट करना चाहूंगा कि आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कभी कभी बहुत एडजस्टमेंट्स ऐसे आ जाएंगे जो बीइंग अ सीए भी आपको कभी कभी लगेगा कि यार ये नहीं हो पा रहा। क्योंकि वहाँ पे सीए में तो आप प्रैक्टिकल केस को समझते हो, वहाँ पे इंटरप्रेट करते हो, बट एग्जाम में आपके पास साइड इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती, तो वहाँ पे इशू आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। बट एट द सेम टाइम देर आर इजी चैप्टर्स जिसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन्स के बहुत इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, या फिर सेट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं। तो उनको भी मेरे को लगता है उनको आपको स्किप नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली आप जैसे अगर इसको प्रैक्टिकल को आप लीव कर रहे हैं यहाँ पे पूरा, तो आप एक बहुत बड़ा चांस ले रहे हैं कि आपको बाकी सारी चीजें आनी चाहिए पेपर वन में, फिर अमेल्गमेशन का क्वेश्चन भी फंसेगा तो आपको करना पड़ेगा। तो वो एक कैच है, राइट। तो एक मिडिल पाथ लीजिए आप इसमें। नोट्स और ये प्रैक्टिकल का इतना ऑर्गेनाइज नहीं है मेरे पास कि मैं उसको प्रॉपर्ली शेयर कर पाऊँ। आपको कुछ एक बार स्पेसिफिक लगेगा तो आप प्लीज एक बार शेयर करना, मैं ट्राई करूंगा आपको शेयर करने का कि आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया में इशू आ रहा है इन नोट मेकिंग, तो मैं फिर भी उसको भेज पाऊंगा। बट ऐसे ऐसे कुछ बहुत प्रॉपर डिजिटली नहीं है कि मैं उसको एकदम शेयर कर दूँ सब कुछ। What advantage does a CA have over BCom students? I think दोनों का ही एटलीस्ट फ्लेयर है। बीकॉम और सीए में ऐसे कुछ वो नहीं है कि कॉमर्स का आपको टेस्ट है दोनों का, और क्योंकि आप सीए या बीकॉम आपने पढ़ा है तो आपको कंफर्ट लेवल आता है जब आप कोई ऑप्शन उठाते हैं ये वाला। अगर आज में आपको कोई अकाउंट्स में आप कहीं फंसेंगे तो आप अपने पुराने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके उसको सॉल्व कर पाएंगे। सेम गोज फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ एरियाज नए होते हैं जिसमें इशू आता है, जैसे कि पेपर 2, वो आपको थोड़े से स्क्रैच से पढ़ने पड़ेंगे। ये रहता है सीए होने का एक एडवांटेज, आपको सिक्योरिटी भी रहती है कि एक प्लान बी है आपके पास जो वर्क कर रहे हैं। दैट कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू बीकॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं वर्क के साथ। मेन एडवांटेज पेपर 1 में मुझे फील होता है फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स पेपर 2 में भी कुछ एरियाज होंगे जो आपके एक्सपीरियंस से आपको हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन लाइक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली इफ यू आर बीकॉम एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि विल being a BCom will be harmful for me, so I can say हाँ ऐसा। it will not be harmful. हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, अगर आप इस वे में देख रहे हो तो yes। जस्ट आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बस 1 महीना थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बस। और कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं आएगा इशू, श्योर, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, और इजी तो हाँ एग्जैक्टली। कोई भी कर लेता है। और अगर आप सीए बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए इनफैक्ट एडवांटेज बस न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत है। थ्योरी में आपको डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे तो आता है पेपर 1। हाँ, तो और आपका लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, लिखने की प्रैक्टिस ही हम्म, छूट गई सर। जो एकदम बीकॉम कॉलेज से निकले हैं अभी, उन लोगों को एक आंसर्स और वो भरने की आदत होती है, तो वो एक हेल्प करता है।
यस यस। और सीए में क्या है ना, फाइनल इज ए डिस्ट्रैक्शन फॉर द यूपीएससी, क्योंकि फाइनल लेवल पे जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो तो कहीं काम आती नहीं है यूपीएससी में। हाँ, तो बहुत बीकॉम से डिटेल। डायरेक्टली कोर्ट से आते हैं, वही चैप्टर्स पढ़ के आते हैं, वही चैप्टर्स उनको यहाँ पे मिलते हैं। और लेवल भी और वही होता है, ऑलमोस्ट हमें 2 थोड़ा साल सा गैप हो ऊपर जाता रहता है। है। ये भी लोग जो भी आते हैं देख सही कि सर मैं तो वो 4-5 साल पहले पढ़ा था। तो भूल गए, भूल गए। बात वही आ चार जाती पांच है। साल क्या सर, 4 5 महीने का याद नहीं रहता। 4 5 साल तो अनलेस आपका प्रैक्टिकल टच नहीं है। हम्म। सुरभि का डाउट है कि जैसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है पीवाईक्यूज लिखते वक्त, कंटेंट याद नहीं आ रहा है। हाँ, और एकदम रिवीजन के बाद करेंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। तो आप इसको स्टेज बाय स्टेज करिए। जैसे आपने आज ओटी ओबी रिवाइज किया, सॉरी ओटी ओबी ज्यादा हो गया, ओटी का आपने सपोज 2 3 चैप्टर रिवाइज करे, तो वैसे तो सारे चैप्टर्स इंटरलिंक होकर आंसर बनता है। बट जैसे आपने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर रिवाइज किया, आज ओटी का फर्स्ट चैप्टर में एनवायरनमेंट और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, सेकंड में आपने गोल्स डिस्कस किया। अब आप पीवाईक्यूज उठाइए इन दीज चैप्टर्स ओनली, ऑफ दीज चैप्टर्स ओनली, और उसको ट्राई करिए लिखने कि कितना आप कंटेंट उसमें लेके आ पा रहे हैं। उससे आपको थोड़ा ज्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं होगा, रादर देन अगर आप पेपर उठा ले 2023 का, 2022 का, उसको आप देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा डिस्कम्फर्ट ज्यादा आएगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर चलिए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करिए। और 1 राउंड ऑफ रिविजन के बाद ऑफकोर्स इफेक्टिव हो जाएगा वो, बेटर आंसर उतारना। बट अभी आप उसको छोड़िए नहीं, थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यूज देखते रहिए। आप पूरा आंसर नहीं लिख पा रहे तो स्ट्रक्चर बनाइए, ब्रेनस्टॉर्म करिए उसको कि अच्छा इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखूंगी। मे बी अभी आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ठीक है, मेरे को एटलीस्ट इतना तो है दिमाग में कि मेरे को डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे कोट लिखना है। अच्छा, बॉडी के 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन में ब्रेक हो रहे हैं, फर्स्ट ये पार्ट है, सेकंड ये पार्ट है, कंक्लूजन कुड बी अराउंड दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है इन द चैप्टर। बॉडी में सर ये पार्ट लिखूंगा, ये कीवर्ड्स हैं, उस तरीके से जैसे आप करते हैं जीएस में, तो वो आपको हेल्प करेगा। सुरभि, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपके लिए। जैसे आप बेसिकली जो आप हमारा एटीट्यूड होता है वो परफेक्शनिस्ट वाला होता है। हम्म। हमें लगता है कि पहली बार में ही सब कुछ सारी टिप्स एक बार में अप्लाई कर देंगे। जो सो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। तो जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हो, फेस्ट मैनर में करना है आपको। और जो चीज आपने नहीं की इस बार, यू प्लीज राइट इट ऑन सम पेज कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज करनी है। कोई टॉपिक आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, जो आज की टाइम लिमिट है वो फॉलो कीजिए। और जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करेंगे टॉपिक को, तो जो इजी टॉपिक है ना उसको इस बार ना पढ़ के अगली बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर इजी टॉपिक को लेस नंबर ऑफ टाइम भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। पहले डिफिकल्ट टॉपिक और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक को करके, और जो इजी टॉपिक है उसको छोड़ के लिख के छोड़ दीजिए कि ये मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं पढ़े हैं, सेकंड टाइम में मैं इनको एक बार पढ़ूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरा कोर एरिया हो गया, टाइम टाइम भी मेंटेन हो जाएगा। और आपको ये भी रहेगा कि हाँ कोई चीज छूटेगी नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू डू दैट। हम्म। अरे सर, परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, जैसे सर बोल रहे हैं कि आप ट्राई करोगे कि आज ही परफेक्ट आंसर लिख दो तो नहीं होगा। मैंने मेंस दे दिया, क्लियर कर लिया, आज हो सकता है आप जो प्रैक्टिस में ज्यादा है वो मेरे से बेटर आंसर लिख लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो धीरे धीरे चीजें आती है। एक लेवल पे आप आते हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाओगे फिर चीजों को लिखने में और करने में। और बहुत ज्यादा अभी एंड डे पे मत देखो कि यही मेरा फाइनल आंसर है, किसी का भी नहीं होता है। ऐसे में भी सर बहुत रेजिस्टेंस आता था मुझे कि ऐसे राइटिंग में बहुत डिले करते हैं कि नहीं लिखना नहीं लिखना, बट वो चीज ऐसी है कि जितना लिखोगे और बेटर होगा। यूपीएससी में सर मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जितना आप हिंदी वर्ड में यूज करो, जलील होने के लिए तैयार हो ना, उतना आप आगे बढ़ पाओगे। कि होने दो कि यार चलो मेरे को नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा, बट आप रेडी रहो कि अच्छा ठीक है, ये आज लेवल था बट कल इससे बेटर होगा। वेरी तो ट्रू। मैं So मैं हमेशा also, मैं हमेशा कहता हूँ कि uh, हमें फेल होने की आदत नहीं है। वी डोंट हैव द हैबिट टू गेट फेल। लाइफ बचपन से ही हाँ। सिखाया टू बी द बेस्ट। और उस हम्म। चक्कर में स्टूडेंट आंसर लिखते ही नहीं है। दे जॉइन द टेस्ट हाँ। सीरीज, द फाउंडेशन कोर्स, एंड दे डोंट राइट द आंसर बिकॉज दे थिंक कि जब एक दिन आएगा जब मैं अच्छा आंसर होगा तब मैं लिखूंगा। बिल्कुल। सो दे आर नॉट रेडी टू फेस द फेलियर। अगर आप डेली बेस पर आंसर लिखते हो, आपका आंसर अच्छा नहीं होता है, तो इट इज ए फेलियर विच वी डोंट वांट टू कन्फ्रंट। बट इट इज अ हम्म। गुड फेलियर एक्चुअली। ये आपकी लर्निंग के लिए है, ये टेस्टिंग के लिए बिल्कुल। नहीं है। ये आपकी जस्ट जानने के लिए है कि क्या मिसिंग है, rather than deciding that you are not good, you are not writing good answer.
So, like Rahul, may I talk on like what Rahul sir said? I do that thing that I leave the less important topic, but when I do my answer writing, no, then I face this thing that I feel that topic is not getting covered. So then I have to get back to that chapter. Suppose I had the target, like sir said, that I started with OT. I did chapter one. I did chapter two goal organization. That I then I did the PYQs of same. जो उस दिन का टारगेट था, आई लेफ्ट दोज टॉपिक्स जो नहीं हो पाए थे, बट व्हेन आई स्टार्ट डूइंग द पीवाईक्यूज ना, आई हैड द फोमो कि वो टॉपिक छूट गए इसलिए मुझसे बन नहीं रहा, देन आई स्टॉप देयर एंड आई गेट बैक अगेन टू द स्टडी मोड। तो वो चीज इतना डिस्ट्रैक्शन ले आता है, ना मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे थे, ना मैं प्रोग्रेस कर रही थी कि मैं जो नेक्स्ट डे है फिर मुझे थर्ड फोर्थ चैप्टर करना चाहिए था, तो वहां पे मूव नहीं कर पा रही मैं इन्हीं में ही रह जा रही हूँ कि मेरे को पहले इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो शुड आई लीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं हुए जो टॉपिक, लीव देम एंड मूव अहेड एज पर द टारगेट, या फिर नहीं वेट देयर एंड डू द लेस इम्पोर्टेंट और जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स है उनको पहले कंप्लीट कर लो, देन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर्स। सर आप बताइए। Yeah, Madhav, you would like to say something about it? मतलब बेसिक एरिया आपको टारगेट कंप्लीशन का आ रहा है, मुझे ये समझ में आया, राइट? टारगेट कंप्लीशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे राइटिंग भी इफेक्ट हो रही है। Yes sir, कोर इशू इज कि वो टारगेट प्रोग्रेसिव ही नहीं हो रहा, लाइक आई एम स्टक टू दैट दोस 2-3 चैप्टर्स ओनली एंड येट आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम एबल टू राइट द आंसर, तो वो टाइम कॉस्ट बेनिफिट आई एम नॉट फीलिंग फिर उसमें। अब जैसे आप प्लान कर रहे हैं उसका, तो आप एक टारगेट आप यूजुअली बनाते हैं उसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब वो ब्रीच हो रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए क्या इशू आ रहा है, क्या आपके पास नोट्स की कमी है, क्या आप एडिक्वेट उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं उसको रीड करने का, उसको समझने का। उस तरीके से आप उसको आगे बढ़ के एवेल्यूएट करके फिर वो मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं होगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली उसकी जोन में है कि आप या तो आप अभी से नोट्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहे, और डिविएशन फॉर से 20% चलता है, बट एकदम 50-60% अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा है तो फिर या तो आपका टाइमलाइन बहुत स्ट्रिंजेंट आपने सेट कर ली है। या यहाँ पर इनफैक्ट ऐसा भी है एक चीज कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में थोड़ा समय ज्यादा लगता ही है, बिकॉज वो उस सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है, उस सब्जेक्ट का जो फ्लो है, वो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। लाइक जब मैं पढ़ाता भी हूँ ना फाउंडेशन कोर्स में, तो फर्स्ट चैप्टर में आई टेक मोर क्लासेस, और लास्ट तक आते आते तो ऐसा होता है कि जो हमारा जैसे चैप्टर होते हैं वो हम एक क्लास में 2 चैप्टर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्लो बन चुका होता है। और आप भी ये रियलाइज करोगे कि स्टार्टिंग वाले चैप्टर में आपको वो चैप्टर की पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, उस चैप्टर के फ्रेम में आने में आपको समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपका थोड़ा टाइम एक्सीड हो रहा है, ठीक है, उसको नोटिस करते रहिए और कहीं ना कहीं उसको कोशिश कीजिए कि बाद में मैनेज कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल इसमें दूंगा, जब ट्रेन स्टार्ट होती है कहीं से, तो मोस्टली आप देखोगे ट्रेन 10 मिनट लेट स्टार्ट होती है और बीच में वो डिले भी हो जाती है कई स्टेशन पे। बट एक बहुत ही रेगुलर पैटर्न देखते हैं कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते टाइम कवर कर लेती है। लास्ट में they will increase the speed or somehow they will manage to complete the to reach the destination on time। तो ये चीज हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इट इज गुड एक्चुअली कि आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, आप कहीं पे भी स्टेप ओवर नहीं कर रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती और भी करते हैं, वो स्टेप ओवर कर जाते हैं कि ठीक है हम समहाउ हमें टारगेट पूरे हो या ना हो, बस हमें टाइमलाइन मीट करनी है। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है, लेकिन इसमें ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप हमेशा ही टाइमलाइन को मीट करोगे। लास्ट में जो चैप्टर्स हैं उसको फास्ट कर लीजिए, इसका यही सिंपल सोल्यूशन है जो मुझे लगता है। और कुछ चीजें छोड़ दीजिए। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ चीजें टॉपिक आपको इस बार नहीं किया आपने और वो छूट गए हैं, तो उसको लिख लीजिए, नेक्स्ट फेज में उसको पहले कर लीजिए। हाँ हाँ मतलब हाँ आपको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और लास्ट टाइम उल्टा पढ़ लो, अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, आखिरी में यस नेक्स्ट रिवीजन में लास्ट चैप्टर से पढ़ लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वही हाँ सब चलो उस स्टार्ट पर भी फोकस आ गया। और फर्स्ट चैप्टर्स तो अपने हो ही गए हैं, और ये इनिशियल की लड़ाई है बस। आई थिंक बाद में आके आपको सब कंफर्ट आ जाएगा और चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू माधव सर, थैंक यू राहुल सर। ये वैल्यू एडिशंस का और किस तरीके से आपने इम्प्रूव किया। वैल्यू एडिशन के लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, सर भी दे रहे हैं नोट्स फॉर डेफिनेशन, कोड्स, एग्जांपल्स एक्सेट्रा। खुद के लेवल पे भी आप गूगल सर्च करके कर सकते हैं। जैसे इनिशियली जब मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था तो मैं खुद के नोट्स बनाए थे। ये भी एक ग्रुप एक्सरसाइज के फॉर्म में आप कर सकते हैं।
जैसे आपने चैप्टर्स बना लिए कि क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप 5-6 लोग हो अगर कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने डिवाइड कर लिया कि यार अच्छा ये 2-3 चैप्टर्स के आप ढूंढो, 2-3 चैप्टर्स के मैं ढूंढ रहा हूँ। मतलब दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आल्सो यू कैन डू फॉर फाइंडिंग वैल्यू एडिशन। बाकी अभी तो कंपाइल्ड है, आप उसको यूज करें। सॉल्विंग PYQs इज इम्पोर्टेंट, यस, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो दिए हैं, डीएडमी पे भी आप यूज कर सकते हैं। पहले बहुत इशू आता था ये कि प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस ही नहीं होते थे अपनी कॉमर्स ऑप्शन में, तो बहुत अभी चैलेंज था। सारे और सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये अब सारे अब सॉल्यूशन अवेलेबल है, हर अब सब्जेक्ट के अवेलेबल है, डोंट वरी। ये तो मैं सोचता था कि एक दिन फ्री बैठ के सारे सोल्यूशन बनाऊंगा इसके, कितना इशू है। और इससे पीवाई की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी इन अ ग्रुप, क्योंकि लास्ट ईयर के पहले आप देखोगे तो सोल्यूशन ही नहीं है। जब आप 2 लोगों का आंसर देखोगे, मैच करोगे, तो हाँ भाई कंसेंसस आ जाएगा कि हाँ यही सोल्यूशन है उसका। तो अभी ठीक है, आप उसको चेक कर एक्चुअली सकते में हो। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि वहां पर आंसर, वो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है इन्होंने। कुछ पुराने क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चन हम्म। ऐसे हैं जो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, तो पीपल गेट स्टक हाँ, देयर, वो सोचते हैं कि यार वो यहाँ भी पे होता है सर। ज्यादा जरूरत है। इशू आप सॉल्व करते हो तो आप चेक करते हो, उसको बेटर होगा आई थिंक। रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन के लिए एक एक्टिव रिकॉलिंग का टेक्निक है, मैंने शेयर किया, आप उसको देख सकते हो। रिकॉर्डिंग सेशन भी अपलोड करेंगे ना सर अपन? ये सेशन अपन अपलोड भी करेंगे ना सर, रिकॉर्डेड? यस यस, यूट्यूब पे डालेंगे तो सर। आप उस पे भी एक बार देख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन मैंने एक्टिव रिकॉलिंग और रिवीजन के बारे में स्ट्रेस किया है। मैक्रो से माइक्रो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है, आंसर्स हुआ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम होम। आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप PYQs लिखिए अभी पहले, इन वेदर इन जीएस और ऑप्शन सबका आपको थोड़ा थोड़ा मॉडल आंसर मिल जाएगा। और मॉडल आंसर का मतलब ही वो है कि उस लाइंस पे आप लिख रहे हैं कि नहीं। अब अगर आप बेसिक स्टार्ट ही कर रहे हैं तो पहले उसके प्रॉपर पार्ट्स है कि नहीं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में आपने सारे उसके डिमांड्स को एड्रेस किया कि नहीं। हाँ, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि सारे पहले सबसे बेसिक्स होते हैं कि IBC फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। फिर सारे उसके पार्ट्स एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर फ्लो उसमें मेंटेन हो रहा है फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल। और आप उसको मैच करिए मॉडल आंसर से। कंटेंट पे अभी इतना मत स्ट्रेस करिए कि बेटर कंटेंट आ रहा है कि नहीं, वो फोकस करिए। प्रेजेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन योर आंसर। सर वी आर रीडिंग। या मैंने एक क्वेश्चन इस पे आंसर राइटिंग के ऊपर एक सेशन 2.5 आवर का डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे हमने, जहाँ पे मैंने पूरा बताया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एवरीथिंग। तो वहां पर आप उस सेशन को जब अटेंड करेंगे तो यू विल योरसेल्फ गेट कि कैसे आपको इवेलुएट करना है। तो बेसिकली वही सारे पैरामीटर जो आपको बताए गए हैं कि इस तरह से आंसर लिखना है, वही पैरामीटर आपको इवेल्युएशन के लिए भी यूज करने हैं। और प्रेफरेबली इवेल्युएट किसी और से कराइए, मतलब आपका फ्रेंड भी हो सकता है, हाँ, अपने खुद पीयर के रिव्यू आंसर कर को सकते हैं। भी करना है और किसी और से भी करा सकते हैं। बिल्कुल। सो इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि वी आर रीडिंग द कंटेंट बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी स्टार्ट, हाउ व्हाट टू राइट, फेसिंग इशू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। इसके लिए अगेन वही अप्रोच है, आप PYQs देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे हैं। सबसे पहले PYQs के सर मॉडल क्वेश्चन, मॉडल आंसर्स भी सर ने दिए सपोज। तो आप समझिए जैसे कोई गोल गोल पे क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे सॉल्व करें। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने गोल का डेफिनेशन दिया, फिर आपने उसको अप्रोच बताई कि गोल कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था ट्रेडिशनल और ह्यूमन रिसोर्स के जो थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग दिया। एक बोलते थे कि आप इंडिविजुअल गोल को और एम्फोसाइज करिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एम्फोसाइज करिए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एडवोकेट्स आए, इंडिविजुअल उसमें एडवोकेट्स आए, फिर फाइनली रिकंसिलेशन थ्योरी वगैरह आई। उसमें सारे फ्यूजन प्रोसेस, कंट्रीब्यूशन इंड्यूसमेंट एक्सेट्रा, MBO भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपके नोट्स बनने चाहिए। जो आप कंटेंट भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसको आप PY के उसके थीम्स के हिसाब से नोट्स बनाएंगे, वो भी आपको हेल्प करेगा। और आप एक्टिव रिकॉल करेंगे, अच्छा यार मैंने गोल्स में क्या क्या पढ़ा है, मैं क्या क्या इस क्वेश्चन में यूज कर सकता हूँ। तो अपने आप उधर फ्लो होगा ऑटोमेटिकली। रिविजन भी बढ़ेंगे और प्रैक्टिस बढ़ेगी उससे। अंडरस्टैंडिंग डिमांड का जैसे सर बोल रहे हैं, एक सेशन है उनका, आप उससे भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन यूपीएससी में आते नहीं है, स्पेशली फॉर ऑप्शनल। तो आपको इतना इशू आएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं मोर और लेस। अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में जरूर थोड़े OTOB में, इवन इन HRM IR, ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे वो सब चैप्टर्स के लिए नहीं करता था ऑफकोर्स स्टडी मटेरियल वो, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास। बट जहाँ पे प्रैक्टिकल्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल पेपर 1 में सेक्शन B में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल्स हैं।
तो आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करिए, हो सकता है वहां पे आपको 2 सिंपल क्वेश्चंस मिल जाए करने के लिए। उस तरीके से आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है तो और भी आप जैसे टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस मिलेगी आपको, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस मिलेगी। सबसे पहले तो पीवाईक्यू से करना है, फिर एडिशनल प्रैक्टिस आपको ये करना चाहिए। कॉपीज के लिए और डिस्कशन के लिए मैं चैनल डाल सकता हूँ। ऑलराइट सर, मेजर क्वेरीज तो हो गया डिस्कशन। एनीथिंग एल्स सर अपने डिस्कस करना? I think we have covered in detail. It's more than 1.5 hours. Yes, yes. And we have discussed all the dimensions. Great. So thank you everyone for attending this session and asking your queries. We are able to touch almost all the dimensions. And thank you, Madhav, for finding out the time on Sunday afternoon. Thank you so much. Thank you. So everyone, we will have more such sessions. अगर आप बोलेंगे तो we will have another session with Madhav. And आपको further you need any support, आप माधव का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने लिंक शेयर किया है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देते हैं लिंक वाला। एंड प्रिपेयर कीजिए, कुछ भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो अभी व्हाट आई एम थिंकिंग एक फॉर्म में अभी बनाने वाला हूँ कि जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं आप डाल सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तब भी यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड ऑल, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सो आई एम पुटिंग आउट ए गूगल फॉर्म ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड अदर प्लेसेस कि whatever questions you have regarding sources, strategy, any small query that you have, so you can ask those questions anytime. All right. So thank you everyone. Yeah. Okay, sir. All Thank the you so best. much, sir. Thank you. Please. All the Yeah. best, everyone. Bye.